A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, let us discuss the today's paper. Now look at question number 4. Avogadro's constant is the number of atoms in 1 gram helium. Number B, molecules in 35.5 gram of chlorine, electrons present in 2 gram of hydrogen, atoms in 24 gram of magnesium. Now you know that 1 mole of any substance contains Avogadro number of particles. So Avogadro number is related to 1 mole. If you take 1 mole of anything, you will have Avogadro number of particles in that. Now if we look at 1 gram of helium, now moles of helium will be equal to mass of helium divided by molar mass. So molar mass of helium is 4. So the result is 0.25 mole. It is not 1 mole. As Avogadro number is the number of particles in 1 mole, and here we have only 0.25 moles of helium, so it does not contain Avogadro number of particles. So option number A is not correct. Number B, the molecules in 35.5 gram of chlorine. Now moles of chlorine will be equal to 35.5 divided by molar mass of Cl2. Molar mass of Cl2 is 71. So we get half mole. So half mole also does not contain Avogadro number of particles. Electron present in 2 gram of hydrogen. Now 2 gram of hydrogen mean 2 moles of hydrogen. Now 1 mole of hydrogen contains Avogadro number of particles, and 2 mole will have 2 multiplied by Avogadro number of atoms. So this answer is also not correct. If you look at option number 4, atom in 24 gram of magnesium, here we find moles of magnesium will be equal to mass divided by molar mass of magnesium. Molar mass of magnesium is 24 gram per mole. So gram and gram are cancelled and we get 1 mole. So 24 gram of magnesium mean 1 mole of magnesium. So the number of atom in 1 mole of magnesium will be equal to Avogadro number. So option number D is correct. मतलब ये है कि अगर आप 24 ग्राम मैग्नीशियम लें तो उसमें जितने एटम होते हैं, यानी 1 मोल मैग्नीशियम में जितने एटम होते हैं, तो एवोगैड्रो कांस्टेंट उस नंबर के बराबर होगा. क्वेश्चन नंबर 5. You know that 2 moles of hydrogen combine with 1 mole of oxygen and form 2 moles of water. Now you are given 7 moles of hydrogen and you are given 4 moles of oxygen. The given amount of hydrogen is 7 mole and the given amount of oxygen is 4 mole. Now the equation shows that for every 2 mole of hydrogen, 1 mole oxygen is used, or 1 mole oxygen reacts with 2 moles. Now look, we have 4 moles of oxygen. 1 mole of oxygen combined with 2 moles of hydrogen. Again, 1 mole of oxygen will combine with 2 mole of hydrogen. 1 mole of oxygen will combine with 2 mole of hydrogen. Now, we are left only with 1 mole of hydrogen because 2, 2 and 2 make 6. So you are left with 1 mole of hydrogen. Now for 1 mole of hydrogen, half mole of oxygen will be used.
Now look how much hydrogen is used in this process. 2 plus 2 plus 2 plus 1 is equal to 7 mole. So hydrogen is completely used in this process. But if you look at oxygen, 1 plus 1 plus 1 plus 0.5, it is equal to 3.5 moles of oxygen. So for 7 mole of oxygen, only 3.5 moles of oxygen will be used. So you are left with half mole of oxygen. Half mole of oxygen is left unreacted, while hydrogen will be completely used in this process. Thus hydrogen, which is completely used, that is the limiting reactant. So hydrogen is the limiting reactant and oxygen will be the excess reactant. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो जिसकी मिकदार या जिसका अमाउंट रिएक्शन के दौरान कम हो जाता है. चुनांचे 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, तो 4 मोल ऑक्सीजन के लिए you need 8 mole of hydrogen. But here we have only 7 mole of hydrogen, which is less than the required amount. So hydrogen is the limiting reactant in this question. Next question आप देखें, question number 6 है. Question number 6. What weight of carbon dioxide will contain as many oxygen atoms as present in 3.6 gram of water? तो आप देखें, पहले वाटर के मोल्स आप मालूम करें. Moles of water 3.6 gram and divided by molar mass, so you get 0.2 moles of water. अब ये कहता है कि 0.2 मोल वाटर में जितने ऑक्सीजन हैं, तो उतने ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अमाउंट में पाए जाएंगे. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की तादाद 2 होती है, जबकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की तादाद 1 होती है. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर contain 1 oxygen and 1 molecule of carbon dioxide has double number of oxygen atom. तो वाटर के 0.2 मोल्स में, वाटर के 0.2 मोल में जितने ऑक्सीजन होंगे, तो उतने ही ऑक्सीजन इसके 0.1 मोल में आपको मिलेंगे. इसका मतलब ये है कि 0.1 मोल ऑफ carbon dioxide is equivalent to 0.2 moles of water regarding the number of oxygen atom. क्योंकि यहाँ पर डबल है ऑक्सीजन, इस वजह से इसके 0.1 मोल में जितने ऑक्सीजन हमें मिलेंगे, तो वाटर के 0.2 मोल्स में उतने ही ऑक्सीजन हमें मिलते हैं. अब पानी के 0.2 मोल में जितने ऑक्सीजन हैं, तो वही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के 0.1 मोल में होंगे. और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल जो है वो 44 ग्राम के बराबर होता है. तो 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू 4.4 ग्राम. सो द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 4.4 ग्राम. इट मीन्स that 3.6 gram of water contain as many oxygen atoms as present in 4.4 gram of carbon dioxide. Next question जो है, question number 12 है. आप question को ज़रा read करें. Which one of the following processes involves breaking of कोवेलेंट बॉन्ड? नंबर 12. किस प्रोसेस में कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो टूट जाते हैं? पहला ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ H2S. तो देखें, अगर आप H2S को बॉयल करते हैं,
H2S के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है प्लस लंदन फोर्सेस। तो अगर आप H2S को लिक्विड स्टेट में लें और आप इसको गैस में कन्वर्ट करना चाहें, so you will have to break dipole dipole interaction and you will have to break the London forces. So covalent bonds are not broken in this process. So option number A is not correct. Option number B को आप देखें, melting of SiO2। आपको पता है कि SiO2 जो है it is polymeric और ये हर सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच होते हैं और हर ऑक्सीजन के साथ 2 सिलिकॉन अटैच होते हैं एंड इट हैज़ ए पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर। इस किस्म के सॉलिड को हम कोवेलेंट सॉलिड या पॉलीमेरिक सॉलिड कहते हैं और इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। चुनांचे अगर आप SiO2 आप अगर इसको मेल्ट करना चाहें, चूँकि ये कोवेलेंट सॉलिड है तो इसमें आपने कोवेलेंट बॉन्डों को तोड़ना होगा। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं तो उसके नतीजे में ये मेल्ट होगा। सो SiO2 will melt only when you break the covalent bond between the silicon and oxygen atom. So melting of covalent solid is not a physical process, it is a chemical process. You will have to break the covalent bonds in this process and only then SiO2 can be melted. Question number 13. Which statement about the following molecule is incorrect? तो यहाँ पर आपने इनकरेक्ट को फाइंड करना है कि इनकरेक्ट इसमें कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, NH3 हैज़ pyramidal शेप, ये इनकरेक्ट नहीं है, इट इज़ करेक्ट। इसकी वजह यह है कि इसके साथ 3 बॉन्डेड पेयर हैं एंड नाइट्रोजन हैज़ 1 लोन पेयर, सो इट इज़ pyramidal, इट इज़ करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लीनियर, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, इट इज़ लीनियर। ऑप्शन नंबर सी, H2O is angular, दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ये सारे करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है H2S इज लीनियर, H2S इज लीनियर, ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। इसकी वजह यह है कि सल्फर के साथ भी देयर आर 2 लोन पेयर, सो द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ H2S रिजेंबल ईच अदर। इसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, बोथ ऑफ देम आर इन 6 ग्रुप, so both of them have 2 lone pair, so these 2 structure resemble each other, so H2S molecule is not linear। तो ये कहता है which statement is incorrect, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है जहाँ पर लिखा है कि H2S is linear, H2S is not linear। तो आपने डी ऑप्शन को करेक्ट करना है। ये ऑप्शन करेक्ट है लेकिन ये बात करेक्ट नहीं है कि H2S is linear, H2S is angular। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, which one of the following gaseous equilibrium would be favored in forward direction by reducing the pressure? तो आपको पता है कि प्रेशर ज़्यादा होने से रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हों, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो रहे हों तो प्रेशर ज़्यादा होने से फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। चुनांचे बी ऑप्शन में अगर आप देखें प्रोडक्ट के मोल कम हैं, सी ऑप्शन में अगर आप देखें प्रोडक्ट के मोल कम हैं, तो प्रेशर ज़्यादा होने से ये दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और प्रेशर ज़्यादा होने से जो पहला ऑप्शन है PCl5 PCl3 प्लस Cl2,
चूँकि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो प्रेशर ज़्यादा होने से बैकवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। तो जो इफ़ेक्ट प्रेशर के इंक्रीज़ का होता है तो उसका उल्टा इफ़ेक्ट जो है वो प्रेशर के कम होने से होगा। चूँकि प्रेशर ज़्यादा होने से बैकवर्ड रिएक्शन होता है इस केस में, तो प्रेशर के कम होने से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आप अगर डी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, इस वजह से इस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35, what will be the effect of increase of pressure on the following equilibrium? Nitrogen combined with hydrogen produces 2 moles of ammonia. तो आप अगर देखें इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं और रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं। प्रेशर अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो स्टूडेंट अक्सर ये समझते हैं कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनने से केसी या केपी ज़्यादा होगा, लेकिन इस तरह नहीं है। केसी और केपी जो है वो प्रेशर के ज़्यादा या कम होने से बदलता नहीं है। बज़ाहिर आपको नज़र आता है कि केसी या केपी इस प्रोसेस में बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। केसी एंड केपी विल नॉट चेंज इन दिस प्रोसेस। और उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि Kc फॉर दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज NH3 raised to the power 2 N2 N2 H2 raised to the power 3। और जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और आप ये सोचेंगे कि जब अमोनिया की मिकदार ज़्यादा होगी तो केसी या केपी में इजाफा होगा, लेकिन इस तरह नहीं है। इसकी वजह यह है कि गैसों की जो कंसंट्रेशन होती है, गैस की जो कंसंट्रेशन होती है, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो अगर आप इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई होने से नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन में भी इजाफा होगा। इसकी वजह यह है कि प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस आर इनवर्सली रिलेटेड। सो इफ यू increase the pressure, concentration of nitrogen and hydrogen will also increase. Sorry, concentration जो है, concentration of gas is directly proportional to the pressure. इसकी वजह यह है कि प्रेशर ज़्यादा होने से वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो थोड़ी जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल एकमोडेट हो जाते हैं। चुनांचे प्रेशर ज़्यादा होने से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन में इजाफा होगा। सो अमोनिया की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन साथ साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से इसमें भी इंक्रीज आता है और इनमें भी, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में इजाफा आ जाता है, जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और केसी और केपी रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। आपके पास एक एक्वियस सॉल्यूशन है, एंड इन दिस एक्वियस सॉल्यूशन यू हैव कैडमियम आयन, you have zinc ion, you have lead ion, you have copper ion। अब अगर साल्ट एनालिसिस में देखें तो साल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कैडमियम, लेड और कॉपर जो है ये सेकंड ए ग्रुप में है, जबकि जिंक जो है ये 4th ए ग्रुप में है। इन सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं या 4th ए के जो एलिमेंट हैं, तो इन दोनों के सल्फाइड पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सेकंड ग्रुप के जो सल्फाइड होते हैं
इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ ए ग्रुप। इनकी के SP वैल्यू जो है ये हाई होती है और इन एलिमेंट की के SP वैल्यू जो है वो कम होती है। चुनांचे अगर आप एसिड भी डालेंगे और इसमें ये चारों आयन मौजूद होंगे तो वो आयन प्रेसिपिटेट नहीं होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। सो प्रेफरेंशियली कैडमियम, lead and copper will make precipitate but zinc will remain in the solution। वजह क्या है? जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जिंक सल्फाइड की के SP वैल्यू ज़्यादा होती है। इट इज़ more soluble comparatively, it is more soluble than lead sulfide, copper sulfide and cadmium sulfide। So ये क्वेश्चन जो है ये आपके साल्ट एनालिसिस से मैंने लिया है। साथ साथ आप साल्ट एनालिसिस को भी देखें, ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उसके नाम याद रखें, कौन कौन से रिएजेंट ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी आप साथ देखें। और बाज़ साल्ट जो हैं वो कलर्ड होते हैं तो उसका कलर भी आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, aldehyde are reducing agent, when they react with filling solution they reduce। असल में क्वेश्चन नंबर 47, फिलिंग सॉल्यूशन असल में कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पोटाशियम टार्टरेट से बना होता है। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ फिलिंग सॉल्यूशन। और इस कॉपर सल्फेट में कॉपर का कलर जो है एक्वियस सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयन जो होते हैं इसका कलर ब्लू होता है, इट हैज़ अ ब्लू कलर। तो जब आप इसके साथ अल्डिहाइड मिलाते हैं, अल्डिहाइड जो हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कॉपर को जब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कॉपर +2 स्टेट से +1 स्टेट में चला जाता है। और यूँ जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कॉपर +1 जो है +1 स्टेट में इसका कलर रेड होता है। सो एक्चुअली the ion which is reduced in filling solution that is the copper ion, और इसकी वजह से हमें कलर चेंज का पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 को अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 48 बाज़ पेपर में ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आप इसको कंप्लीट करें। ये है 2 moles of A combined with 1 mole of B produces 3 moles of C and 1 mole of D। कहता है कि 2 moles of each of A and B were taken in 1 liter flask। अगर हम A और B दोनों की बराबर बराबर मिकदारें लें, A और B की अगर हम बराबर बराबर मिकदार लें, यानी दोनों के मोल्स अगर बराबर बराबर हमें दिए जाएं, so which one of the following will always be true when the system attains equilibrium। तो फिर कौन सी बात ठीक होगी इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होगा। आप इक्वेशन को देखें, सिंपल है, चूँकि B का 1 मोल यूज़ हो रहा है और उसके साथ A के 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं तो A की मिकदार ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो जो रिएक्टेंट ज़्यादा यूज़ होगा उसकी मिकदार जल्दी कम हो जाएगी और जो रिएक्टेंट कम मिकदार में यूज़ होता है तो उसकी मिकदार ज़्यादा रह जाएगी। सो व्हेन द इक्विलिब्रियम इज़ एस्टेब्लिश्ड, A की मिकदार कम होगी, concentration of A will be less than the concentration of B। Why? Because for each 1 mole of B 2 moles of A are used। चूँकि A ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो इस वजह से A की मिकदार कम होगी। इक्विलिब्रियम स्टेट में A की मिकदार कम होगी। क्वेश्चन नंबर 61, for a reversible reaction the catalyst increases the speed of forward, backward
both forward and backward reaction equally. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. आप अगर देखें तो ये जो Kc है, it is the ratio between the rate constant for the forward reaction and rate constant for the backward reaction. Kc is the ratio between Kf and Kr. चूँकि कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड करता है और साथ साथ रिवर्स रिएक्शन को भी स्पीड अप करता है, तो जितना इजाफा इसमें आएगा उतना ही इजाफा इसमें आएगा, दोनों में बराबर बराबर इंक्रीज आएगा. इस वजह से Kc की वैल्यू जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. देयर इज़ नो चेंज ऑन द वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ Kc. Why? Because the catalyst increases the speed of forward as well as the backward reaction to the same extent. ये नहीं है कि कैटलिस्ट जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को ज़्यादा स्पीड करेगा और बैकवर्ड को कम करेगा, इस तरह नहीं होता. दोनों रिएक्शन को ये बराबर बराबर स्पीड करता है. क्वेश्चन नंबर 62. आप देखें FeOH, इसको अगर हम आयोनाइज करें, सो इट फॉर्म 1 मोल ऑफ आयरन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल होगा और इसके 3 मोल बनेंगे. अगर इसके x मोल हम लेते हैं, सो यू विल गेट x मोल ऑफ दिस वन एंड यू विल गेट 3x मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस. You know that Ksp is equal to molar concentration of iron plus 3 into molar concentration of hydroxide ion raised to the power 3. Now we know that the concentration of iron is X and concentration of hydroxide ion is 3X and raised to the power 3. So 3 3s are 9, 9 3s are 27, and x cube multiplied by x raised to the power 1. So you will get 27 x raised to the power 4. So this will be the value of Ksp for this reaction. Next question जो है 63. The mole fraction of ethyl alcohol in 1 molar solution of ethyl alcohol will be. चूँकि मोल फ्रैक्शन आम तौर पर जब हमें दोनों चीज़ों के मोल मालूम हों तो हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ बज़ाहिर हमें सिर्फ इथाइल अल्कोहल के मोल्स मालूम है, लेकिन एक्चुअली अगर आप पूरे क्वेश्चन को देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें हमें पानी और अल्कोहल दोनों के मोल्स असल में गिवन है. बिकॉज यू नो दैट द सॉल्यूशन इज़ 1 मोलर सॉल्यूशन. 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये है दैट यू हैव 1 मोल ऑफ ethyl alcohol and you have dissolved it in 1 kilogram of water. Now 1 kilogram of water जो है it is equal to 1000 ग्राम. इसे भी हम अगर मोल्स बनाएं तो इसको वाटर के मोलर मास पर डिवाइड करना होगा. तो मोल्स ऑफ वाटर come out to be 55.5. Now you know the number of moles of alcohol which is equal to 1. You also know the number of moles of water which is equal to 55.5, and in total will be 1 plus 55.5, that gives us 56.5. Now the mole fraction of alcohol will be equal to number of moles of alcohol divided by n total is equal to 1 divided by 56.5 is equal to 0.017. So option number C is correct. So in 1 molar solution of ethyl alcohol, the mole fraction of alcohol will be 0.017.
और एक पॉइंट ये भी याद रखें कि अगर प्योर कंपाउंड हो, फॉर एग्जांपल यू हैव प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का जो मोल फ्रैक्शन होगा सो दैट विल बी 1। प्योर कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। जब सोल्यूशन होगा हमारे पास तो हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा, और सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम है तो वो 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव A and B and you have a binary solution of A and B, so mole fraction of A is if 0.4, the mole fraction of B must be equal to 0.6 because the sum of the mole fraction is always equal to 1। तो अगर आपको किसी सोल्यूशन में एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम हो, दूसरे का आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें 3 कंपोनेंट हों और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपको गिवन हो, लेट्स सपोज इट इज 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0. फॉर एग्जांपल 3, so what will be the mole fraction of C? So we know that XA plus XB plus XC is equal to 1, or XC will be 1 minus XA and plus XB. So it is 1 minus 0.2 plus 0.3. So 1 minus 0.5 is equal to 0.5. तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन 0.2 है, इसका 0.3 है, तो इसका मोल फ्रैक्शन 0.5 होगा, और तीनों का सम जो है वो 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो अगर आप देखें थर्ड पीरियड में, पीरियाडिक टेबल में अगर आप देखें तो थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट हैं उसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, then you have phosphorus, then sulfur, chlorine and then argon। तो इनके कंपाउंड अगर हम ले रहे हैं NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4 एट्सेट्रा, तो जो हम राइट की तरफ जाते हैं तो जो केटायन होता है इसका साइज कम होता है। मैग्नीशियम +2 का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है, एल्यूमिनियम +3 का साइज जो है ये और भी छोटा होता है। तो जितना केटायन का साइज छोटा होगा तो कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर जो है वो कम होगा। तो आयनिसिटी जो है या आयनिक कैरेक्टर ऑफ क्लोराइड्स ये डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं। तो जितना आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। अब चूंकि सोडियम क्लोराइड ज़्यादा आयनिक है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इस वजह से इट विल बी मोर आयनिक एंड इट विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। चुनांचे क्लोराइड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट वो लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो उनमें कमी होती है। 79, द मोस्ट इनसॉल्युबल सल्फेट इन वाटर इज कैल्शियम। आप अगर देखें तो पहले ग्रुप 1A के जो एलिमेंट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वो पानी में ज़्यादा होती है ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स है उनके मुकाबले में। और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और रेडियम। तो जो हम सेकंड A ग्रुप में नीचे आते हैं तो इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन साइज बढ़ने की वजह से बेरिलियम का साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, बेरियम का साइज सबसे बड़ा है। सो ग्रेटर इज द साइज, लोअर इज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। चूँकि सॉल्युबिलिटी जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन पर मेनली डिपेंड करती है, तो जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इस वजह से बेरिलियम सल्फेट इट इज़ मोर सॉल्युबल देन मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा सॉल्युबल है कैल्शियम सल्फेट के मुकाबले में। कैल्शियम सल्फेट इज़ मोर सॉल्युबल देन स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट इट इज़ द लीस्ट सॉल्युबल।
ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है पानी में। इस वजह से जब एक्सरे निकालते हैं पेशेंट का, स्टमक का एक्सरे जब निकालते हैं तो उसको बेरियम सल्फेट खिलाया जाता है ताकि उसका पिक्चर, स्टमक का पिक्चर सही तरीके से बने। अब मैग्नीशियम सल्फेट या कोई और सल्फेट क्यों नहीं उसको खिलाते? क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज़्यादा होती है एंड दे आर टॉक्सिक। बेरियम सल्फेट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेफ। इट इज़ लीस्ट टॉक्सिक ड्यू टू its insolubility. Question number 84. Carbonate of dash element has least thermal stability. 84 number. आप देखें बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एटम हैं। ये +2 +2 +2 +2 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, शो करती है। तो जितना हम नीचे जाते हैं ग्रुप में उतना साइज़ बढ़ता है। जितना साइज़ बढ़ेगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो बेरिलियम +2 के जो कंपाउंड होते हैं दे आर लीस्ट आयनिक, और बेरियम +2 के जो कंपाउंड होते हैं दे आर मोस्ट आयनिक। और जो कंपाउंड ज़्यादा आयनिक होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। चुनांचे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो बेरियम कार्बोनेट की होगी और सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी वो बेरिलियम की होगी, क्योंकि बेरिलियम में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है due to its smaller size of cation. The most basic oxide among the following is, तो जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड की जो बेसिसिटी है या जो बेसिक कैरेक्टर है तो वो डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चूँकि सोडियम बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है तो सोडियम का ऑक्साइड जो है दैट इज़ मोस्ट बेसिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड से इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेसिसिटी इससे भी कम है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बेसिसिटी और भी कम है। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा उन एलिमेंट का होगा जो लेफ्ट साइड पर होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक, ये भी बेसिक है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर एम्फोटेरिक हो जाता है, इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। Which one of the following element has lowest reduction potential? ये बहुत सिंपल है। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी सबसे कम होगा। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लिथियम टॉप पर है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ कोवेलेंट? तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो केटायन के साइज पर डिपेंड करता है। जितना केटायन का साइज छोटा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आप देखें PbCl4 को, PbCl4 में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 होता है। और आपको पता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज किसी एलिमेंट पर आता है तो उसका साइज़ कम होता है। लेड का साइज़ बड़ा है, +1 का साइज़ कम होगा, +2 का साइज़ और कम होगा, +3 का साइज़ और कम होगा, +4 का साइज़ सबसे कम होगा। तो जितना साइज़ छोटा होगा इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। जब इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फिर ये जो है Pb+4 ये दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे सकता, क्योंकि इस पर चार्ज ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से जब भी किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज़्यादा हो
तो वो अयानिक नहीं हो सकता, दैट मस्ट बी कोवेलेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 95, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस बट SiO2 इज सॉलिड। ये अभी मैंने आपको इसका रीज़न बताया था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है एंड इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड डज नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर। ये भी आपके कोर्स में है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें सही ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि कार्बन जो है उसका साइज़ छोटा है और कार्बन के गिर्द, इस छोटे कार्बन के गिर्द जब 4 क्लोराइड इसके साथ अटैच होते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इधर अटैक नहीं कर सकता है आसानी से, बिकॉज द कार्बन एटम इज हिडन बिटवीन द बल्कि क्लोरीन एटम। तो पानी का मॉलिक्यूल कार्बन तक अप्रोच नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रोलिसिस आसानी से नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 107, द फार्मूला ऑफ क्रोम आयरन स्टोन, इसको क्रोमाइट भी कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये क्रोमाइट का फार्मूला है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन टेट्राकार्बोनिल निकल, और ये निकल के साथ 4 कार्बन मोनो ऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिले हैं। यहाँ पर ये न्यूट्रल लीगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल लीगेंड, और निकल को ये न इलेक्ट्रॉन देता है न इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इस वजह से निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 होगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि निकल के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है कि कार्बन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि दोनों के साथ एक एक लोन पेयर होता है, तो इसका सही जवाब ये है कि कार्बन मेक्स अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद द निकल। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन निकल के साथ शेयर नहीं करता है। सो द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड मेटल एटम। क्वेश्चन नंबर 109, when aqueous solution of sodium carbonate is added to Fe+3 ion, अगर आप Fe+3 आयन के साथ सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो बज़ाहिर हमें ये नज़र आता है कि कार्बोनेट -2 है और आयरन +3 है, तो इसे बनेगा Fe2 एंड CO3 होल 3। बज़ाहिर हमें ये नज़र आता है कि ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये इस तरह नहीं होता, क्योंकि आयरन +3 जो है जब +3 फॉर्म में ये होता है तो ये एसिडिक सोल्यूशन बनाता है, इट मेक्स एसिडिक सोल्यूशन। इसकी डिटेल हम टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं बता सकता इस वक्त, लेकिन द सोल्यूशन ऑफ आयरन +3 साल्ट विल बी एसिडिक। और ये हाइड्रोजन आयन जो है ये कार्बोनेट आयन के साथ मिलकर H2CO3 बनाता है। H2CO3 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। सो इफ़ यू हैव अ सोल्यूशन ऑफ आयरन +3 साल्ट एंड यू ऐड कार्बोनेट, so you will see bubbles of carbon dioxide coming out from the solution, और इस प्रोसेस में आयरन +3 की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, so you get FeOH whole 3. So the compound which is left with us, that will be iron hydroxide and not iron carbonate. A compound X is orange red in color. When potassium hydroxide is added, it becomes yellow. आप बताएं कि ये X कंपाउंड जो है ये कौन सा कंपाउंड है? तो आप देखें ये असल में कार्बोनेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट के इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। क्रोमेट का कलर येलो होता है, डाइक्रोमेट जो है इसका ऑरेंज कलर होता है। जब हम इसके साथ एसिड मिलाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है और येलो कलर चेंजेस इनटू ऑरेंज कलर। लेकिन अगर हम इसके साथ बेस मिलाएं, इफ़ यू एड बेस, हम बेस मिला रहे हैं, तो बेस मिलाने से OH आयन जो हैं
वो H आयन के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल मेक वाटर। तो यहाँ पर H आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। जब H आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल दिस रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो डाइक्रोमेट की मिकदार कम होगी और क्रोमेट की मिकदार ज़्यादा होगी। इस वजह से ऑरेंज कलर जो है वो वापस येलो में कन्वर्ट होगा। सो द कलर ऑफ द सोल्यूशन और द अमाउंट ऑफ डाइक्रोमेट and chromate in the equilibrium mixture depends on the pH of the solution. अगर आप acidic medium लेते हैं then dichromate forward reaction will occur और इसका कलर orange होगा, इसकी मिकदार ज़्यादा होगी। Basic medium आप मिलाते हैं reverse reaction होगा and orange color will convert into the yellow color. Which one of the following compound will be able to produce metal alkyanide? अल्काइनाइड का मतलब है एसिटाइलाइड। तो आपको पता है कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को अल्काइन के साथ मिलाते हैं तो ये मेटल अल्काइनाइड बनाता है, अल्काइन। लेकिन ये सिर्फ वो अल्काइन बना सकते हैं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब वो हाइड्रोजन जो कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच हो। अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा तो ऐसा अल्काइन जो है ये मेटल अल्काइनाइड नहीं बना सकता। चुनांचे अगर आप 1 ब्यूटाइन अगर आप लें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, सो दिस विल मेक अल्काइनाइड। लेकिन अगर आप 2 ब्यूटाइन लेते हैं तो 2 ब्यूटाइन में इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके साथ भी हाइड्रोजन नहीं है। चुनांचे 2 ब्यूटाइन lacks acidic hydrogen and it does not make any acetylide or alkyanide. So the correct answer is A. Ozonolysis of 2-methyl butene 2, इसको 2-butene भी कहते हैं और इसको butene 2 भी कहते हैं। So this is the compound 2-methyl and 2-butene। आप अगर इस कंपाउंड की ओजोनालिसिस करें तो ओजोनालिसिस का प्रोडक्ट जो है वो आप कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है। सिंपली आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ दें। जब आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं सो यू आर लेफ्ट विद CH2 और इस तरफ आपके साथ क्या रह जाएगा? You are left with C, this is H2 actually, and this is CH3. So you are left with one fragment and this other fragment. Simple तरीका है, डबल बॉन्ड दोनों बॉन्डों को आप तोड़ दें तो आपके साथ एक ये फ्रैक्शन बन जाता है, एक ये 2 कंपोनेंट बन जाते हैं और इसके साथ आप डबल बॉन्ड के ज़रिए से ऑक्सीजन मिलाएं इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ भी आप ऑक्सीजन अटैच करें। तो इस कंपाउंड से आप देख रहे हैं एक फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, एक 2-ब्यूटानॉन बन रहा है, एक कीटोन और एक अल्डिहाइड। तो यू मस्ट बी एबल टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर obtained in ozonolysis reaction. So both aldehyde and ketones are formed in this process. Next question, question number 124. Which one of the following decolorized bare reagent and bromine water? तो इसमें ethene और ethane दोनों चूंकि unsaturated हैं, so both of them will decolorize bare reagent as well as bromine water. Question number 125. Ozonolysis reaction with alkene produces 1 mole of formaldehyde and 1 mole of acetaldehyde. What is the name of this alkene? So this is very simple. आप प्रोडक्ट को देखें, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा प्रोडक्ट जो है दैट इज CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है। आप इसमें कार्बन गिने सो यू हैव 1 कार्बन, इसमें कार्बन गिने यू हैव 2 कार्बन। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टार्टिंग अल्कीन है उसमें 3 कार्बन होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रोपाइलिन या प्रोपीन एक चीज़ है, यू नो दिस इज प्रोपीन।
आप इसको डिकम्पोज करते हैं, इसकी ओजोनालिसिस करते हैं, द बॉन्ड इज ब्रोकन। जब बॉन्ड टूट जाएगा, सो यू आर लिफ्ट विद वन दिस फ्रिक्शन एंड यू आर लिफ्ट विद दिस फ्रिक्शन। आई कैन राइट इट इन दिस वे, आई कैन राइट this in this way. So attach oxygen to this carbon with the help of a double bond. So you get acetaldehyde and formaldehyde, or simply प्रोडक्ट में कार्बन की तादाद गिने और रिएक्टेंट में गिने, अगर जिसमें बराबर होंगे तो वही रिएक्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 126, which one of the following alkene on acid catalyze hydration form tertiary butyl alcohol? तो सिंपल है, जिस अल्कीन में टर्शरी कार्बन होगा, सो दैट विल मेक द टर्शरी अल्कोहल। ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, लेकिन डी ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन आप करें, इसका फार्मूला इस तरह होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, गलती से इधर हाइड्रोजन लिखा गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता। आप इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखें, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। जब आप इसकी हाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ये मैं वाटर को इस तरह भी लिख सकता हूँ। पॉजिटिव एटम जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा मौजूद हैं, तो इधर H अटैच होगा, इधर OH अटैच होगा, CH3 CCH3 OH and CH3. So you will get tertiary alcohol. 131. All of the following are electron donating species, but one of these act as deactivating group. वो क्लोरीन है, halogen, because halogen have high electronegativity. The actual electrophile and nitration of benzene is 132. तो बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नाइट्रेशन रिएक्शन में NO2 जो है ये बन जाता है H2SO4 और नाइट्रिक एसिड के मिलाप से। सो द एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल इज NO2। चूँकि NO2 इसमें गिवन नहीं है, NO2 पॉजिटिव आयन यहाँ पर गिवन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ देम, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इज नॉट सक्सेसफुल in one of the following substrates indicate। ये बेंजीन है, फिनोल है, मिथाइल है और नाइट्रोबेंजीन है। आपने पढ़ा है कि बाज़ ग्रुप जो हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, और जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करते हैं दे आर कॉल्ड डी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो अगर आप बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन OH पर रिप्लेस करें, सो इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसी तरह अगर आप बेंजीन के साथ फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं, इट विल बी मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। लेकिन अगर आप बेंजीन के साथ NO2 अटैच करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दिस इज डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो बेंजीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन। देयरफॉर फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन विल बी डिफिकल्ट इन नाइट्रोबेंजीन। 141. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? तो ये अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल पानी के अंदर कम सॉल्युबल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की साइज़ कम है तो वो ज़्यादा सॉल्युबल हैं, टर्शरी अल्कोहल उससे भी ज़्यादा सॉल्युबल हैं। सो सॉल्युबिलिटी इज़ रिलेटेड टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। द सिग्मा बॉन्ड ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ये है दी ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट इन कीटोन और अल्डिहाइड, तो इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर हैं और एक इसके साथ कार्बन अटैच है, तो ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। एक p ऑर्बिटल आप देखें, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ,
दिस इज़ डबल बॉन्ड O, ये एक sp2 दूसरा sp2 और एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज, यहाँ पर भी एक अनहाइब्रिडाइज, और ये इसका sp2 और sp2, तो कार्बन का sp2 और ऑक्सीजन का sp2 आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो py और py ऑर्बिटल हैं आपस में मिलकर they make a pi bond. So the sigma bond is formed in the carbonyl group. The sigma bond is formed by the overlapping of sp2 hybrid orbital of carbon and sp2 hybrid orbital of oxygen. तो इसमें सही जवाब नहीं है. So none of them. Question number 143. Which one of the following will have maximum number of molecules? तो number of molecules जो हैं that is directly proportional to number of moles. तो आप पहले moles find करें. You have 1 mole of water, you have 32 gram carbon monoxide. इसके moles बनाएं. इसका mass जो है वो 28 है. So it is about 1.2 mole. और आप बाकी ऑप्शन देखें तो सब में 1 से कम मोल्स हैं. सिर्फ बी ऑप्शन में मोल्स की तादाद 1 से ज़्यादा है, तो जिस में मोल ज़्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 151. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर इलेक्ट्रोड वुड व्हाट विल हैपन. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आप अगर कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, this is anode and this is cathode. Now the solution of copper sulfate does not have only copper and sulfate ion, it also has hydrogen ion and it has hydroxide ion. ये दोनों आयन पानी में मौजूद होते हैं. चुनांचे ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है और सल्फेट आयन, both of them they will move towards the positive plate. ये दोनों पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन चूँकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो OH का हायर है SO4-2 से, तो OH नेगेटिव ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, और SO4 will not oxidize. So there will be preferential oxidation of the hydroxide ion into hydrogen gas, into oxygen gas. तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन गैस जो है that will be collected at the anode. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. और कैथोड पर कॉपर आयन यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं बनेगा. उसकी वजह यह है कि कॉपर +2 आयन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज हायर देन हाइड्रोजन. तो कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा, एनोड पर ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा. Zinc displaces copper from its salt because इसकी वजह यह है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है. Zinc plus copper, zinc will oxidize and copper will reduce. What is the reason? वजह यह है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है. यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात की है, तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा. So zinc has higher oxidation potential than copper, but it has lower reduction potential than copper. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लीड बैटरी, इस प्रोसेस में जब डिस्चार्ज होता है, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो दोनों इलेक्ट्रोड पर लीड सल्फेट बनता है. आप पूरा रिएक्शन जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लीड सल्फेट इज़ प्रोड्यूस ऑन बोथ. 161. Which one of the following is not a redox reaction? इसमें कौन सा रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो इसमें थोड़ी सी मुझसे गलती हुई है ऑप्शन में, क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं. एक कैल्शियम कार्बोनेट वाला, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो
अगर आप सबके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर B+4 है और यहाँ पर B+4 है, यहाँ पर कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2 सो दिस इज़ नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अमोनिया जब NH4+1 में कन्वर्ट होता है, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन -3 है, तो दोनों रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। Question number 162, which one of the following element has highest oxidation potential? Lithium. The number of atoms in 52 AMU of helium. आपको पता है कि हीलियम का 1 एटम जो है, 1 एटम ऑफ हीलियम वो 4 AMU के बराबर होते हैं, तो 52 डिवाइडेड बाई 4 इसे 13 आता है, सो इट विल बी द मास ऑफ 13 एटम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 171, which of the following ion does not contain unpaired electron? Zinc, zinc +2, zinc की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 4s2 and 3d10। जिंक +2 पहले इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकलते हैं, d से नहीं निकलते, ये 3d10, और d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन जिंक +2 आर पेयर्ड, और बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप लिखेंगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 172, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन? वो कौन सी स्पीशी है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद न्यूट्रॉन से ज़्यादा है? तो ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखें, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 है। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन 8 के बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी इसमें 8 के बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें 8 और -2 चार्ज की वजह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी आए हैं, सो इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑक्साइड आयन। ए ऑप्शन करेक्ट है। pH ऑफ 10 मोलर सोल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 173, आप देखते हैं pH इज इक्वल टू -log ऑफ H -log ऑफ 10⁻⁴। थ्योरेटिकली इससे -1 जवाब आता है, लेकिन जब भी कोई एक्वियस सोल्यूशन होगा तो उसका जो pH रेंज है वो 0 और 14 के बीच में होता है, 0 से कम नहीं होता, 14 से ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से pH ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Which of the following acid is the strongest acid? डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये हमारे पास है एसिडिक एसिड। जब भी आप एसिड में कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो ये उसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो एनी इलेक्ट्रॉन withdrawing group when you attach to an acid, it will increase the acidity. So dichloroacidic acid is more stronger acid. Nitriles on reaction with Grignard reagent, nitrile या साइनाइड जिसे हम अल्काइल साइनाइड, ये कंपाउंड हैं, ये जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिलते हैं so they finally convert into the ketone। B option। 191, पान पर ऑक्सी एसिटाइल या एसाइल नाइट्रेट is produced in the presence of light when NO2 reacts with peroxyacetyl radical या peroxyacyl radical। इसको कहते हैं, this is called acyl radical, इसको कहते हैं ऑक्सीएसाइल, इसको कहते हैं peroxyacyl radical, peroxyacyl radical। इसके साथ अगर आप NO2 मिलाएं, NO2 के साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देते हैं एंड यू गेट दिस कंपाउंड। तो इसको पान कहते हैं, peroxyacyl नाइट्रेट इसको कहते हैं। अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप होगा तो फिर इसको कहते हैं peroxyacetyl नाइट्रेट। ये पावरफुल इरिटेंट है, आई इरिटेंट है।
or it is dangerous for lungs also. In higher concentration, it destroys the vegetation also. Isopropyl chloride gives how many peaks in NMR? प्रोटॉन NMR के ज़रिए से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में टाइप ऑफ हाइड्रोजन मालूम कर सकते हैं कि किस कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. अब अगर ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन देखें, सो दे आर आइडेंटिकल रिगार्डिंग देयर एनवायरनमेंट, नो द आइडेंटिकली, एंड दिस वन इज डिफरेंट. तो इन 6 हाइड्रोजनों की वजह से यू विल गेट 1 peak, and due to this hydrogen you will get 1 peak. So you will get 2 peaks in the NMR. Which type of spectrum is used to identify the functional group? तो functional group analysis के लिए हम infrared spectroscopy इस्तेमाल करते हैं. Infrared spectrum जो है that gives peaks at different position for different functional groups. 194. Which one of the following is greenhouse gas? Nitrous oxide. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये डाई एटॉमिक हैं और ये होमोन्यूक्लियर हैं. तो कोई भी गैस जो डाई एटॉमिक हो और होमोन्यूक्लियर हो, आइडेंटिकल एटम से मॉलिक्यूल बना हो, सो दैट विल बी अ नॉन ग्रीन गैस. और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है, इस वजह से it absorbs the infrared radiation and it contributes to the greenhouse effect. And nitrous oxide is also called laughing gas, and it is used as a local anesthetic in dentistry. So this is the end of today's lecture. Thank you very much.